बहरामपुरा चाडूरा बडगाम में फौज और मिलिटेंटों के बीच आज शाम शुरू हुए एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इलाके में मजीद मिलिटेंटों के मौजूद होने का अंदेशा है। इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इतला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि मिलिटेंट एक ईंट के भट्टे में मौजूद थे। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग के सरनल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनी गईं। वाकये के बाद पुलिस और फोर्सेस जाए वारदात पर पहुंच गए। पूरे इलाके का मुहासरा करके मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। ताहम पुलिस ने बाद में किसी भी मिलिटेंट हमले से इनकार कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक सरनल में कायम सीआरपीएफ कैंप के नजदीक मुश्तबा नक्लो हरकत की बिना पर ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ एहलकारों ने हवाई फायरिंग की। उधर गुलशनपुरा त्राल में 3 मिलिटेंटों की हलाकत को फौज ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। फौज का कहना है कि त्राल और मुल्हिका इलाकों में इन हलाकतों की वजह से मिलिटेंसी को काफी धचका लगा है। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर विजय महादेवन ने कहा कि त्राल एनकाउंटर शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। हमाद खान के मारे जाने से न सिर्फ त्राल बल्कि बारामूला में मिलिटेंसी को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों मिलिटेंट आम शहरियों को धमकाने में मुलविस थे। Who reportedly were harassing the local civilians and issuing threat calls to the businessmen in Tral for a long time. On establishment of the initial contact, we asked the trapped terrorists to surrender. However, they refused and fired on the army troops. The operation thereafter, which lasted for 15 hours, resulted in the elimination of 3 Hizbul Mujahideen terrorists, including Umar Fayaz Lone, alias Hamad Khan, the Hizbul Mujahideen district commander of Tral and Baramulla, Adil Bashir Mir and Faizan Hamid Bhatt. 2 AK series weapons and 1 SLR along with other warlike stores were recovered from the slain terrorists. While retaliating to the heavy volume of fire by the trapped terrorists, our troops took measures to minimize loss of property. It must be noted that this entire operation was completed without any loss to any civilian life. Thereby, we have ensured that the beautiful and serene valley of Tral has been released from the evil clutches of these 3 terrorists, thereby facilitating the population to carry on with their routine life in a more safe and secure environment. इस मौके पर ब्रिगेडियर विजय महादेवन ने कहा कि फौज के एक सेक्टर के दायरे में आने वाले इलाके में 50 से जायद मकामी और 10 से जायद गैर मुल्की मिलिटेंट मौजूद हैं। फौज की कोशिश है कि इलाके से मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का सफाया मुमकिन बनाया जा सके। One sector area of responsibility, approximately there are around 50 plus local terrorists and approximately 10 plus foreign terrorists. That would make it around 61, 62 or so that we know as of operating in our area of responsibility. See, our focus is to target the terrorist leadership and their cadres so that the threat to the innocent civilians is reduced and we can usher in peace and prosperity in this area. Yes, of course, the elimination of Hamad Khan is a dent to the Hizbul Mujahideen in the Tral area. Our focus continues on anti-terrorist operations. We continue in a relentless pursuit to get intelligence, specific intelligence about the move and presence of the terrorists and target them while causing minimum loss of property or innocent civilian life towards creating a very safe and secure environment for our population in Kashmir. Hamad Khan was a district commander of Hizbul Mujahideen, both of Tral and Baramulla district. He has been active since April 2016 and if you see, there are around 16 FIRs registered against him in police station Tral and 3 FIRs registered against him in police station Avantipura. That gives credence to this fact that these terrorists were terrorizing the people, issuing threat calls to the locals. So I think that answers your question adequately.
वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज मुसलसल दूसरे रोज भी भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बेशतर मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है। कई मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। कुपवाड़ा और बारामूला में भारी बर्फबारी हुई है। इस बीच बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। श्रीनगर की अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई, ताहम कई लिंक रोड्स और बैरूनी रास्ते लगातार बर्फ से ढके रहे। इस बीच जनूबी और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों समेत कई दीगर मकामात पर भी बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। श्रीनगर हवाई अड्डे से आज भी तमाम परवाजें मनसूख करनी पड़ी। उधर महकमे मौसमियात ने आज रात से मौसम में बेहतरी आने की पेशगोई की है। बहुत सारी जगहों पर अभी यहाँ बर्फ़ नहीं हटाया गया है, जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मुश्किलात आ रही हैं, चलने में फिरने में बहुत मुश्किलात आ रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। उनको बहुत मुश्किलात है। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी तक कोई उनका सरगरा कुछ नहीं हुआ है। हमारा मकसद ये है कि जल्द जल्द ये क्लियर हो जाए, ट्रैफिक आमद रफ्त के लिए ठीक हो जाए। अभी जो बर्फबारी हो रही है इसकी वजह से ना गाड़ियाँ अच्छे से चल पा रही हैं, तो और ना मतलब हम भी अच्छे से चल पा रहे हैं। रोडों पे अभी बर्फ सब जमा है। श्रीनगर शहर में आज दूसरे रोज भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस बार भी बर्फ़ टाइम पे हटाने में नाकाम रही। अगर हमने देखा कि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे जो स्नो कटर्स हैं या बर्फ़ हटाने की मशीनें जो हैं वो टाइम पे नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जो सिविलाइंस के एरिया हैं जहाँ पर बर्फ़ हटाई गई, ताहम जो मेन एरियाज़ हैं चाहे डाउन का एरिया हो वहाँ अभी तक बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। दूसरी ओर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे भी आज दूसरे रोज़ लगातार बंद है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पेट्रोल और डीज़ल की जो कमी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में रोनुमा हुई है उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोग चिंता में हैं इसकी वजह से। ऐसे में चाहिए कि हुकाम को जो रोड क्लियरेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करना और जल्द अज जल्द जो है श्रीनगर की सड़कें जो हैं वो उनको बहाल करना। जहांगीर रजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर शुमाली कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई है। जिला बारामूला में भी भारी बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। जिला के 3 और 4 मकामात पर 4 फीट के करीब बर्फ जमा हो गई है। वहीं जिला के बालाई इलाकों में तकरीबन 5 से 6 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के सबब लोग अपने घरों में ही बंद होकर रह गए। कौमी शाहरा समेत जिला के तमाम राबिता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं। इंतजामिया ने बाद में कौमी शाहरा पर मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। उधर उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। दुदरन इलाके में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। दरागुटलियां इलाके में 2 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है। इस वाक़े में एक खातून को बचा लिया गया। बुनियार के लिम्बर इलाके में बर्फानी तोदे गिरने का वाक़या पेश आया, यहाँ एक बच्चे को बचा लिया गया। उड़ी के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात मुतासिर हुई हैं। सालोसा क्रीरी में एक मकान और चंद आर्जी ढांचों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सड़क राबिते बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से राबिता सड़कों से बर्फ हटाने की अपील की है। यहाँ पर रोड पे बर्फ बहुत है, लगभग 1.5-2 फुट पड़ा है। अभी तक मशीन नहीं आ रही है, कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। लोग चल के आ रहे हैं और बर्फ़ कंटिन्यू पड़ रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और हमें बारामूला तक जाना था। सरकार हमेशा वादा कर रही है, बिजली है, ये हमें सेवा रखी है आपके लिए, मशीनें रखी है, कुछ नहीं इंतज़ाम सर, कोई इंतज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट तो कहती है कि सर हम ऐसे करते वैसे करते, क्या किया है सर? अभी सुबह से सर एक बार बर्फ़ नहीं हटाई गई सर, तकरीबन 3 फुट के करीब यहाँ बर्फ़ है सर। तो ना तो बिजली है। ऐसे कि इस सूरत हाल में सर जहाँ तक पेशेंट अगर कोई बीमार होगा सर, डिलीवरी केस होगा सर, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे सर? जबकि यहाँ तक सर ये बर्फ़ नहीं हटाई गई सर। सुबह से हम यहाँ आए तो देखा जाता है कि अभी तक बर्फ़ नहीं हटाई गई।
वहीं वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों की तरह कुपवाड़ा जिला में कल से ही भारी बर्फबारी मुसलसल जारी है। जिला के पहाड़ी इलाकों में 7 फीट के करीब ताजा बर्फ जमा हो गई है। बेशतर मैदानी इलाकों में 3 से 4 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है। जिला में बिजली, पानी और सड़क राबिते बंद हैं। लोगों की नक्लो हरकत महदूद होकर रह गई है। भारी बर्फबारी की वजह से कई सरहदी इलाकों के सड़क राबिते बंद हो गए हैं। लोलाब, टिकीपुरा, कलारूस, धुन्नी में बर्फानी तोदों की वजह से कई अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। बालाई इलाकों में हालात मजीद अबतर हैं। करना, केरन और बस्तर के तीनों सड़क राब्तों को आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और इंतजामिया ने लोगों को नकल हरकत के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। लेकिन अगर हम बात करें बिजली की, बिजली निज़ाम पूरी तरह जो है मुतासिर हो गया है और बिजली गायब है। वहीं दूसरी बात अगर हम करें कि मैदानी इलाकों में जो सड़क राब्ते हैं, मैदानी इलाकों में सड़क राब्ते बंद पड़े हैं। अगर जी इंतजामिया ने बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगाया है, लेकिन अहम शाहराहों को खोलने की इंतजामिया की बड़ी पैमाने पर कोशिश है। तमाम अंदरूनी सड़क राब्ते जो है वह हनूज 2 रोज से बंद पड़े हैं और लोगों की मुश्किलात में बतदरीज जो है इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की कोशिश है कि पहले अहम शाहराहों को खोला जाए ताकि लोगों की नकल हरकत जो है वो जिला सदर मुकाम तक मुमकिन कराई जा सके। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं कुपवाड़ा जिला में बर्फबारी से सड़क राबिते बंद पड़े हैं। श्रीनगर कुपवाड़ा शाहरा कई घंटों तक बंद रही। मुख्तलिफ इलाकों में लोग जिला सदर मकामात से कट होकर रह गए हैं। कई मरीज घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दूर दराज इलाकों से आए कई मरीजों को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। चौकीबल सड़क पर हर नुक्कड़ पर गाड़ियां फंसी हुई थीं। कई जगहों पर एम्बुलेंस गाड़ियां भी बर्फबारी की वजह से फंस गई थीं। बिजली पूरे जिला में गुल हो गई है। मैदानी इलाकों में 4 और बालाई इलाकों में 7 फीट के करीब बर्फ जमा हो गई है। जुमागुड़ में 30 भेड़ बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गए। राशनपुरा में बर्फानी तोदे की जद में आने वाली 2 खवातीन को बेहोशी की हालत में निकाला गया। टिकीपुरा और कलारूस में भी बर्फानी तोदों की जद में आकर कई खवातीन जख्मी हुई हैं। दफातर में हाजिरी ना के बराबर रही। जिला के अहम अफसरान भी आज अपने दफातर का रुख नहीं कर पाए। डीसी कुपवाड़ा ने कहा कि अहम शाहराहों को खोलने की कोशिश जारी है। भारी बर्फबारी से इसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं। इंतजामिया ने खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों में खौफ का माहौल है। ये हाल कि रोड बंद, नेशनल हाईवे बंद, पकनस मौका पश बड़ बड़ और यह हस्पताल गड़ या सर पे लाश बेचार कलार वातान यह लाश वजह बुन सनीक नखस पे तम क्या बन यह गो डिस्ट्रिक्ट गड़ तुम यह हाल डिस्ट्रिक्ट कपवार मज ये इंतजाम बिल्कुल ठप, बिल्कुल नाकाम और कह हरकत लगा बाजार में पैदल पगित यह डिस्ट्रिक्ट कपवार हाल। अस्पताल में अगर रोड हो जाएगा तो फिर हम घर लेकर जाएंगे। इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा है रोड? बिल्कुल बंद है सर, उधर ही बंद है, बस परेशान है हम लोग। रोड नहीं खोले है इधर कुपवाड़ा में? किधर है रोड? रोड पक्का गड़ वड़ कर नेशनल हाईवे बंद तो ये पैदल वारियास गाड़ी में जनाब मुश्किलात सुबह 8:30 द्रास बह बराबर वोतस बह 2:30 बजे योतन तीता मुश्किलात वत तूता शीन मान मे पे पैसेंजर वाल पान बोन तिमन पे दक दिन गाड़ी हर कुन जाए शीन सड़कन तुलमुत शीन थोड़ा बहुत डोजर दिवान मामूली जेर अब तो वथान तो चलान अके आव डोजर वोल वनी मे गाड़ी अंदर कुन सो डोजर वोल वोत युतन फशा तो वो तो अक्सर ज्यादा पैदल पैदल लुक। हमें श्रीनगर जाना है, कल हमारी फ्लाइट है और लेकिन हम इस वक्त कुपवाड़ा में दरमांदा है और ये हाईवे यहाँ पर इस वक्त ये देख रहे हैं आप लोग भी यहाँ पर इस वक्त कैसे परेशान हैं। तो और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेकार है, तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिलायंस का जो ऑपरेशन है आज सुबह 5 बजे से चल रहे हैं। MED की 11 जो स्नो प्लाउ, स्नो कैट सारे फील्ड पर हैं। बीकन के ओसी साहब खुद फील्ड पर हैं, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो उनकी भी सारी मशीनरी कुलंगाम से लेकर चौकीबल तक कंटिन्यूसली चल रही है। पर क्योंकि जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर से गिरती जा रही है, तो इस वजह से जैसे ही क्लियर करते वापस से रिपीट स्नो क्लियरेंस करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी नेशनल हाईवे को थ्रू रखने की है ताकि जो गाड़ियाँ हैं, मेन एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो थ्रू रहें। साथ ही साथ हमारे जो टाउन एरियाज़ हैं उनके अंदर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस चल रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी की मशीन्स चल रही हैं, R&D की मशीन्स चल रही हैं, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके एक्सेस रोड्स थ्रू रहें।
सभी के सभी बीएमओ से हमारा कंट्रोल रूम कंटिन्यूस राब्ते में है और हमारे जो सारे हेल्थ सेंटर्स हैं वो जेनसेट बैकअप्स पे चल रहे हैं, क्योंकि जो पावर की 33 kV लाइन्स हैं वो फॉल्टी हैं। पावर रेस्टोरेशन का काम भी जारी है। फील्ड टीम्स जो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए फील्ड पर गई हुई हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जल्द ही पावर रिस्टोर होगी। और जो हमारा सिनेरियो है उसको क्लोज वॉच हमने रखी हुई है। अवलांचेस हायर रीचेस में डेफिनेटली आए हैं। मूरी के ऊपर कलारुस के हायर रीचेस में 1-2 जगह पर आए थे। कुछ लोग घर में ट्रैप हो गए थे जैसा आपने फरमाया, और एसडीआरएफ की टीम्स हमने डिस्पैच की थी, रेवेन्यू की टीम्स डिस्पैच की थी, और जो लोकल्स थे, लोकल्स का बड़ा अहम रोल रहा है सभी जो लोगों को रेस्क्यू करने में। और उसके अंदर प्रॉपर्टी ज़रूर डैमेज हुई है, लेकिन अभी तक जान का कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरह से सारकुली में इसी तरह का एक एवलांच हायर रीच में आया था, वहाँ पर भी लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकाल लिया गया है और प्रॉपर्टी का नुकसान डेफिनेटली हुआ है। पर एज ऑफ नाउ डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में किसी भी जगह से किसी भी लॉस ऑफ लाइफ की कोई खबर नहीं है। सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इंडोर्स रहें और अपने आप को इस किसी भी तरह के खतरे में खुद ना डालें। इंडोर्स रहने की कोशिश करेंगे, किसी भी अवलांच की कोई भी प्रॉब्लम्स उनको नहीं आएंगी। हमारे राशन हर जगह बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है, खाना पीना हर जगह अवेलेबल है। एलपीजी सिलेंडर्स भी 2000 से ज़्यादा सिलेंडर्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बफर स्टॉक भी अवेलेबल है, तो एलपीजी की कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल भी हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में अगले 3-4 दिन के लिए अवेलेबल है, और एडिशनल व्हीकल्स ऑन वे हैं श्रीनगर से। कल शाम तक हम ऑगमेंट हो जाएंगे इस कैपेसिटी को लेकर, और पावर रेस्टोरेशन के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि इंडोर्स रहने की कोशिश करें और आसपास अवेयर रहें और आसपास में लोगों की मदद करें जो भी इसकी नीड में हो। उधर बांडीपुरा में कल दोपहर से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में अगरचे सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, ताहम लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों को खुला रखने में इंतजामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुरेज से मिली इतला के मुताबिक वहां 6 फुट के करीब बर्फ जमा हो गई है। पुराना तुलेल इलाके में बर्फानी तोदा गिरने के वाक़े में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। उधर कोरकपल, गुरेज और बख्तूर इलाके में भी बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात में मुतादिद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। ताराबल गुरेज से मिली इतला के मुताबिक वहां तेंदुए के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। गुरेज में सुबह एक कोरकबल में एक अवलांच आया था, इसमें 2 मकान डैमेज हुए थे। अलबत्ता उसमें कोई लोग रह नहीं रहे थे, तो इसलिए कोई जानी या माली नुकसान या कोई इंजरी ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है। बता अभी कुछ देर पहले पीटीएल में एक अवलांच आया घर पर, जिसके 6 अफराद हैं वो काफ़ी इंजर्ड हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया गया और लोकल लेवल पर वहाँ पर मेडिकल केयर जो प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैंने आर्मी कमांडर जो है वहाँ पर 109 ब्रिगेड के, उनसे भी बात किया, तो वो उन्हें नीरो शिफ्ट करेंगे जहाँ पर आर्मी डॉक्टर जो हैं वो उनकी वहाँ निगहदाश्त। गुलमर्ग, टंगमर्ग, कुंजर, पटन, मागाम और दीगर इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी से तमाम सड़क राबिते मुनक़ता हो गए हैं। गुलमर्ग में अब तक 4 फीट बर्फ जमा हो गई है। टंगमर्ग में 4 फीट से ज्यादा, पट्टन और दीगर मैदानी इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर बर्फ न हटाने की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सड़कों से बर्फ न हटाने पर इंतजामिया के खिलाफ लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से सड़कों से बर्फ हटाने का मुतालबा किया है। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक बर्फ़ हटाने का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया है। इंतज़ामिया का कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही बर्फ़ हटाने की जो मशीनरी है वो नज़र आ रही है। ये जो जिस रोड पे हम इस वक्त खड़े हैं वो मागम और पटन के बीच में मेन कनेक्टिविटी है, वो मेन रोड है। तो इस रोड पे लोगों को आने जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक बर्फ़ हटाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। उधर जिला बारामूला में पट्टन के बेशतर इलाकों में भी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ब्लॉक शीराबाद खूर के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन और दीगर मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान इन्हें दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। अब सारे रास्ते बंद है। गवर्नमेंट जो दावा करे हमारे पास मैकेनिज्म जो मशीनें है वो हमारे पास रेडी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर झूठ है। सारे एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। सारे जो हमारे ब्लॉक है, पटन एरिया है, मागम एरिया है, सारे लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात है। लोग अंदर ही बैठे हैं, मार्केट बंद है, ज़बरदस्त प्रॉब्लम है लोगों के पास। इस वक्त हम क्या करेंगे? क्या रोडों से बर्फ़ नहीं हटाएगी? नहीं, सारे रोड बंद है। कोई मशीन सामने नहीं आई, कोई एडमिनिस्ट्रेशन सामने नहीं आई।
उधर जनूबी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम अजला में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। जिला के बेशतर पहाड़ी इलाकों में कई फीट बर्फ जमा हो गई है। जिला कुलगाम के अहराबल, दमहाल, हाजीपुरा और दिवसर के बालाई इलाकों में काफी बर्फ जमा हो गई है। जिला शोपियां में मुगल रोड और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। दोनों अजला में जिला इंतजामिया ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। जिला पुलवामा में भी आज वादी के दूसरे अजला की तरह बर्फबारी हुई। इससे दर्जे हरारत में कमी वाक़ हो गई है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। रसोई गैस की किल्लत से भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि जिला की सभी सड़कों से अलसुब ही बर्फ को हटाया गया। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए भी काम जारी है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जवाहर टनल के करीब बर्फबारी और रामबन में पसियां गिराने की वजह से इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की आमदरफ्त को मअतल कर दिया गया है। इसकी वजह से उधमपुर के मुख्तलिफ मकामात पर भी 500 से ज़ायद छोटी बड़ी गाड़ियां दरमंदा होकर रह गई हैं। सब्जियां और मेवे जैसी ज़रूरी अशिया से भरी माल बरदार गाड़ियां भी शाहराह पर फंसी हुई हैं। दरमंदा अफराद को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। ना हमारे पास यहाँ बाथरूम है, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं है। आज 4 दिन हो गए यहाँ पे खड़ा है। सुबह से आज रात की 4 बजे से बारिश शुरू हो गया यहाँ पे। देखो आप कितना मुसीबत में फंसा हुआ यहाँ पे, पैसेंजर भी फंसा हुआ यहाँ पे। वादी कश्मीर में आज शाम से बर्फबारी रुकने के साथ मौसम में बेहतरी आने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने आज रात से मौसम में बेहतरी आने की पेशगोई की है। दिन के दर्जा हरारत में इजाफा होने से मकामी लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। महकमे मौसमियात के अफसर डॉक्टर मुख्तियार ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कल सुबह कोहरा रह सकता है, ताहम दिन के 11 बजे के बाद धूप निकलने का इम्कान है। महकमे ने बर्फानी तोदे गिराने के इम्कानात वाले इलाकों में लोगों को मोहतात रहने की तलकीन की है। जिला कुपवाड़ा और बारामूला में भारी बर्फबारी हुई है। वादी के दीगर अजला में औसत या हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो आने वाले दिनों में आज शाम से सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा। 16 शाम तक फिलहाल मौसम ठीक है। जहाँ तक दर्जे हरारत वगैरह का सवाल है, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर था वो -1.5 था आज श्रीनगर में। बाकी गुलमर्ग, पहलगाम जहाँ पे ज़्यादा ठंड हुआ करता इस टाइम, वहाँ पे भी -4 -5 के आसपास है। सबसे ज़्यादा ठंड जो है द्रास सब डिवीज़न के अंदर होता था, -30 -32 के आसपास था। तो वहाँ पे भी काफ़ी आज फ़र्क हुआ है, -10 पहुँच गया मिनिमम टेम्परेचर। तो आने वाले दिनों में भी होपफुली मतलब टेम्परेचर जो है विद इन लिमिट्स ही रहेगा, ज़्यादा ठंड नहीं होगा। आज शाम से बिल्कुल सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे कम होगा। अलबत्ता थोड़ा हल्की बर्फबारी या बारिश ये रहेगा रात भर में भी, क्योंकि मॉइस्चर जो है यहाँ ट्रैपिंग हो जाता है, खासकर यहाँ वैली में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी सिस्टम निकल जाता है मतलब उतना जल्दी मौसम साफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर ट्रैपिंग वगैरह ज़्यादा होता है। कल मॉर्निंग आवर्स में भी लोगों को लगेगा शायद अभी फिर से बारिश होगा, लेकिन मिस्ट विस्ट रहेगा मॉर्निंग आवर्स में। 11 साढ़े 11 बजे के बाद हल्की धूप निकलने के चांसेस हैं कल से। कश्मीर में कल से हो रही बर्फबारी और श्रीनगर में आज हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। इंतजामिया ने इस मसले से निपटने के लिए कई इक़दाम करने की बातें कही थी, मगर आज ज़मीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स नजर आए। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट का मंजर अपनी कहानी खुद बयान कर रहा था। यहाँ लोगों का कहना था कि शहर के दिल का अगर ये हाल है तो बाकी इलाकों में किस तरह के हालात होंगे, इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ख़राब मौसम की वजह से कई लोग यहाँ दरमांदा होकर रह गए हैं। मुश्किलात आप देख रहे हैं, हम नीचे नहीं उतर सकते हैं, क्या करें। ये आज की गवर्नमेंट का हाल देखो आप। 39 ईयर्स का हूँ मैं, तब से यही देख रहा हूँ, गवर्नमेंट यही कर रही है। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हो नहीं रहा है। बहुत सारी मुश्किलात हो रही है। देखिए ना, हमारे पास इतना बड़ा जूता है फिर भी पानी इसमें अंदर जाता है। ये तो जहलम जैसा लग रहा है यहाँ इस तरफ। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये ड्रेनेज क्या बनाया है उन्होंने, ब्लॉक है ये सब, ड्रेनेज सफाई नहीं हो रही है इसकी। ये जो दुकान शॉपकीपर्स ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि कस्टमर आ नहीं सकता है, गाड़ी के बगैर आ सकता है गाड़ी के साथ, तो फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये तो पॉश एरिया है, मतलब लाल चौक, पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड, और ये सबसे क्रीम ऑफ द सिटी। तो ये यहाँ पर ये हालत है, ये बहुत ही मुश्किल है जनाब। देखो ड्रेनेज भी इधर काम नहीं कर रहा है, सारा फेल है, और ये इस पर सैलाब भी आ सकता है। ये पानी दुकान में भी जा सकता है, वो हमको प्रॉब्लम कर सकता है। और कस्टमर के लिए कौन आएगा, कस्टमर नहीं चल सकता इधर।
तो बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है। Yeah, very good. I was skiing in Gulmarg, so I went there for 3 days, and now I come back to Srinagar. But unfortunately, my flight was cancelled, so I have to stay in Srinagar until the airport reopens. But yeah, very nice, beautiful people, beautiful country. Kashmir is very nice, and my friend, he's looking after me very well. The people of Kashmir are beautiful. It's safe to come to, and more people should come here for holiday. भदरवा के बालाई इलाकों में गुज़िश्तर रात से बर्फबारी हो रही है। इससे पारा मजीद गिर के मनफी पर आ गया है। भदरवा के बेशतर बालाई इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। भारी बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामिया ने भदरवा भसोली रोड और भदरवा छंबा रोड ट्रैफिक के लिए बंद करने की हिदायत दी है। लद्दाख के कई मकामात पर भी भारी बर्फबारी हुई है। शाम 4 बजे तक करगिल कस्बा में 11 इंच, द्रास में 25, जंस्कार में 18, रंगदम में 19, पानीखर में 21, सनकू में 16, चकतान में 6, वाखा में 7, बटालिक में 8 इंच बर्फ जमा हो गई है। द्रास, करगिल, जंस्कार, पानीखर, बटालिक और रामदुम के सड़क राबिते भी बंद है। भारी बर्फबारी की वजह से द्रास में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गई है। पानी और बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। बाजार और कोचिंग मराकिज भी बंद रहे। मौसम की खराबी की वजह से जम्मू के कटरा में वाक़ वैष्णो देवी के लिए चल रही हेलीकॉप्टर सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मौसम की खराबी की वजह से ओहदेदारों ने इस बात की जानकारी दी। ताहम भारी बारिश के बावजूद यहां श्रद्धालु अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं।